which are studying commerce, economics, and civics, they must have a very good input from Professor Khan's lecture. Title is very generalized. Oh, I could see Professor M.L. Sai Kumar. Sai Kumar sir, welcome you to the Health. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good to see you. Like that, we have so far 35 participants joined. Generally, the number goes to 100. I don't have to reintroduce Professor Khan. A brief intro has been sent to all the participants along with our invitation. Now, world knows him. Anybody would like to know who is Amirullah Khan, they just type in Google, they get every detail of him. So with this minimum possible introduction, I hand over the webinar to Professor Amirullah Khan Sahab. Sahab, बहुत शुक्रिया आपका. You have been associated with Helping Hands since last many years. हम आपकी services को भूल नहीं सकते. Please, the webinar is with you now. Next 45 minutes. Thank you so much, Shaukat sir. I hope you can. I hope you can hear me. Yes. Yeah, it's clear. Right. Thank you. And today I was, I'm trying to be very ambitious, and it is only because of Can someone let me know if they can hear me? Yeah, it's very clear. Okay, excellent. Thank you very much. Thank you. So as I was saying, what I will try to do over the next 45 minutes is something that is really ambitious, and my only encouragement comes from the fact that I find that this group is an attentive group, is a group that is curious, and a group that is open to new areas and new subjects. So that is why I am trying this for the first time. I am trying to introduce an entire subject to debutants. The study of economics is extremely important, because what does economics teach you? What is economics about? Economics is about managing your home. That is what the original meaning of the word was, of managing a home. And that's why it's very important to, that's why it became a very important issue. Today, economics is about managing the country's economy, the country's finances. I am now trying to share my screen. Let me see if I can do that. Yes, I can. Do I have to make you the co-host? I think you've done that. So you can see me. Done. Yeah, we can see your screen.
Thank you so much. So, what I'm doing today is taking you through some aspects that all of you, whether you are a engineer, doctor, want to be an engineer, want to be a doctor, want to be a commerce graduate, want to do business, want to get into politics, want to be a lawyer, each one of you must know some principles of economics. Even if there are some of you who want to do nothing, right? You have a rich father or a rich grandfather and you don't want to do anything, even you must understand some economics. And what I hope to do at the end of the next 40 minutes or so is that each one of you at least understands why you should know some economics. Okay. Is that if you have any questions, please put them in the chat window. I will take them up as soon as we finish. Okay. Otherwise, keep yourself muted if you for the next till I finish my presentation. So the first thing is that there is economics, right? There is economics, and what does economics do? As I said, economics studies. Originally, economics was the study of how to manage your home. Then it became the study of three things: of production, of consumption, and of transfer. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हम सलाम का टाइम हो गया है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो इज अ स्टडी ऑफ अ मार्केट, राइट? आप कोई भी मार्केट में जाते हैं, यू आर डीलिंग विथ इकोनॉमिक्स। लाइक राइट नाउ एक इकोनॉमिक इशू चल रहा है, ये एक मार्केट है, मैं एक लेक्चर दे रहा हूं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, दैट इज अ मार्केट, दैट इज इकोनॉमिक्स। मैं लेक्चर क्यों दे रहा हूं? मैं लेक्चर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए ये लेक्चर जरूरी है। सो आई एम सप्लाइंग अ लेक्चर, यू आर डिमांडिंग अ लेक्चर, इट्स अ मार्केट, दैट इज इकोनॉमिक्स। अगर इस लेक्चर की कोई वैल्यू नहीं है, अगर ये बिल्कुल थर्ड क्लास लेक्चर है, तो आप अगली बार सुनेंगे नहीं, राइट? उससे ये मालूम हो जाएगा कि इस लेक्चर की प्राइस 0 है, यानी कि ये बेकार लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई ऐसी चीज लगे कि आपके काम की है, तो अगली बार आप वापस आएंगे। आप में से जितने लोग वापस आए, अगर पूरे के पूरे आए, तो ये समझ में आएगा कि हाँ भाई, इस लेक्चर की कोई वैल्यू थी और वो इस लेक्चर की प्राइस होगी। तो इकोनॉमिक्स बस इतना सा सब्जेक्ट है कि कोई सामान बेचता है, कोई खरीदता है और किसी दाम पे खरीदता है। ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये दो तरह की इकोनॉमिक्स है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जो हमारी और आपकी इकोनॉमिक्स। आपके शौकत भाई के पीछे कुछ किताबें रखी हैं, उन्होंने वो किताबें खरीदी, दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन, क्योंकि उन्होंने अपने पैसों से अपने पढ़ने के लिए एक किताब खरीदी। दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन। उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, उससे शौकत भाई को पड़ता है, जो बेच रहा है उसको पड़ता है। तो वो माइक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन वो है जो हम सबके लिए लिया जाता है। मोदी जी अनाउंस करते हैं कि कल से मैं सारे 10 रुपए के नोट बंद कर रहा हूं, वो हम सबको फर्क पड़ता है उससे। या वो कहेंगे कि मैं कल से जूते पहनना बैन कर दूंगा, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है, क्योंकि वो हम सबको फर्क पड़ता है उससे। सारे जूते मैन्युफैक्चरर्स को फर्क पड़ता है उससे, सारे मोचियों को फर्क पड़ता है उससे, सारे टैनरीज को फर्क। तो मैक्रो डिसीजन वो होता है जो बड़ा डिसीजन सबके लिए होता है।
तो हम वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बाद में देखेंगे। हम पहले वो इकोनॉमिक्स को देखेंगे जो हम सबको असर करती है, हम सबको जिससे फर्क पड़ता है, राइट? तो वो जो एक एक आदमी का बिहेवियर है उसको माइक्रो कहते हैं। आप में से कुछ लोगों को आप देखिए, हम सब अलग अलग लोग हैं। हम में से कुछ को अगर आप एक पिज्जा शॉप को जाएं, 10 आप में से आपके 4-5 दोस्त हैं, आप सबको it is very rare if all of you will like the same pizza. One of you will say भाई मुझे तो चीज चाहिए, कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो पनीर चाहिए, कोई चाहेगा कि उसमें मेरे लिए सिर्फ वेजिटेबल हो, कोई बोलेगा नहीं मुझे सिर्फ चिकन पिज्जा। ये अलग अलग क्यों डिमांड करते हैं? हम में क्यों फर्क है? आप जैम लेने जाएं, आप में से किसी को एप्पल जैम पसंद है, किसी को पाइनएप्पल, किसी को ब्लूबेरी, और किसी को जैम पसंद ही नहीं। ऐसे क्यों होता है? ये जो समझना होता है इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो, जहां पे हम अमीर गरीब, क्यों, कितने अमीर लोग हैं इंडिया में, कितने गरीब लोग हैं, क्यों गरीबी क्यों है, कितने अमीर लोग हैं इंडिया में? आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो आप उसका जवाब दे पाएंगे? डू यू नो व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन रिच? कौन होता है रिच? जिसके पास मोटरसाइकिल हो, या जिसके पास कार हो, या जिसके पास हवाई जहाज हो। और गरीब कौन होता है? वो जिसके पास साइकिल हो या जिसके पास साइकिल भी ना हो। तो ये जो स्टडी है कि आखिर कितने लोग अमीर हैं, कितने मिडिल क्लास के हैं, कितने गरीब हैं और क्यों हैं, that is what is meant by the study of macroeconomics. इंडिया में जो उमूमन समझा जाता है वो है नहीं। हमारे पास बहुत कम लोग अमीर लोग, शौकत भाई के जैसे 2% लोग जो बहुत अमीर लोग, और 4-5% लोग ऐसे हैं जो औसतन थोड़े बहुत अमीर। एक 8% ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास। 85% इंडिया का 85% पॉपुलेशन, 85% पॉपुलेशन इज पुअर। 85% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, एक दुनिया की एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी $3 से कम कमाता है दिन में वो गरीब है। ये दुनिया का डेफिनेशन, राइट? $3 का मतलब अबाउट 220 रुपए। इंडिया का 85% पॉपुलेशन 220 रुपए रोज से कम कमाता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि हम बड़े मिडिल क्लास कंट्री है। नहीं, हम पुअर क्लास कंट्री। हमारे पास 10-12% मिडिल क्लास है, 2-3% रिच है, 85% हमारे पास गरीब है। अब इन गरीबों का हम करें क्या? हाउ डू यू मेक पुअर पीपल come to middle class? How do you make the middle class become rich? That is what constitutes one important study of macroeconomics. अब आपको क्या पड़ी हुई है? आप क्यों चाहते हैं कि लोग गरीब से मिडिल क्लास हो जाए? एक तो इंसानियत की बात कि भाई गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरी, आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप अगर पिज्जा बेच रहे हैं, बर्गर बेच रहे हैं, तो आपके कितने बर्गर बिकेंगे? आपके उतने बर्गर बिकेंगे जितनी हिंदुस्तान की मिडिल क्लास। आप चाहेंगे कि आपकी इंडिया की मिडिल क्लास बढ़े ताकि आपकी बिक्री बढ़े। अंबानी साहब क्यों चाहते हैं कि लोग गरीब से मिडिल क्लास हो जाए? क्योंकि जितने लोग गरीब से मिडिल क्लास होंगे उतने लोग उनका जियो फोन लेंगे। अडानी साहब क्यों चाहते हैं कि हम जो लोअर मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास हो जाए? क्योंकि जो अपर मिडिल क्लास पहुंचेगा, दे विल ऑल नाउ स्टार्ट फ्लाइंग इन अंबानीज प्लेन्स, अडानीज प्लेन। अडानी के पास अब हिंदुस्तान के 1/3 एयरपोर्ट है।
अगर हम में से कोई एयरपोर्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता हवाई जहाज पे ट्रैवल, तो उनके प्लेन खाली रहेंगे। वो इसीलिए चाहेंगे कि हम सब बड़े आदमी बने, हम सब बिकम बेटर। एंड व्हाई डज द गवर्नमेंट वांट इट? द गवर्नमेंट वांट्स इट बिकॉज द गवर्नमेंट सेज कि जैसे लोग गरीब से मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास से अमीर होते हैं, उतना ज्यादा वो टैक्स देते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग बेहतर हो। दैट इज व्हाई वी स्टडी मैक्रोइकोनॉमिक्स, राइट। और सबसे बड़ी बात जिस वजह से मैंने आज सोचा कि इसकी बात करें, वो ये कि हमारा वोटर जो आजकल 5 स्टेट में वोट दे रहा है, अवर वोटर्स वांट टू नो कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। हमारी गवर्नमेंट ने कितने पैसे खर्च किए कोविड, हमारी गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करके स्कूल बना रही, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक इशू। अगर हम अच्छे वोटर होते तो हम हर लीडर से ये पूछते, अच्छा आप ये बताइए कि कोविड वैक्सीन सबको देना है, why are you not giving it to everybody for free? Why are you charging us? कोविड वैक्सीन हर एडल्ट को देना जरूरी है, ये आप ही कह रहे हैं। इससे पूरे मुल्क में हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी, लोग मरेंगे नहीं। So why are you not giving it for free? Why are you not giving it to everybody who wants it? Why are you saying कि सिर्फ 45 साल के लोगों को देंगे हम, और वो लोग जो जिनको कोई और बीमारी है, वो लोग जो आके लाइन में खड़े रहेंगे, हर एक को क्यों नहीं देते? कितने पैसे खर्च होंगे आप अगर आप सबको दे दें कोविड वैक्सीन फ्री में? तो आपके कितने 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ इतने खर्च होंगे। आप हमसे टैक्स में तो 15 लाख करोड़ लेते हैं, तो आप आधा लाख करोड़ क्यों नहीं खर्च करते? ये हमको ये पूछना चाहिए एज अ वोटर। हम पूछते क्या है? हम पूछते ये है कि भाई वो बनारस में मंदिर कब बनी। तो दैट इज द मैक्रो। तो कुछ टर्म्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स। डोंट गेट वरीड अबाउट द टर्म्स, दे आर वेरी सिंपल टर्म्स एंड लेट मी एक्सप्लेन कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है जिसका मतलब होता है ट्रेड ऑफ। ये ट्रेड ऑफ इज समथिंग दैट वी डू एवरी डे। हर वक्त हम एक चॉइस लेके आते हैं। अब आप में से कई लोग जिन्होंने ये लेक्चर ज्वाइन किया, अब 5 बजे से 6 बजे तक आप मेरी ये गुफ्तगू सुनते रहे। आपने क्यों किया ये? व्हाई डिड यू चूज? आप अगर ये 1 घंटा अगर आप फेसबुक पे चले जाते, अगर आप कहीं कोई दोस्तों के साथ चैट करने लगते, तो बड़ा मजा आता, इज़न्ट इट? या सो जाते 1 घंटे की अच्छी दोपहर की नींद, या अगर आसपास कोई फुटबॉल और क्रिकेट का ग्राउंड है वहां खेलने चले जाते। व्हाट आर यू डूइंग? आपके पास चॉइस था। आप 5 बजे से 6 बजे तक आप अपने दोस्तों के साथ किसी इंटरेस्टिंग चैट विंडो पे आप किसी फिल्म एक्टर के बारे में चैट कर सकते थे, लेकिन आपने सोचा नहीं कि 1 घंटा शायद हम कुछ सीख लें। ये ट्रेड ऑफ कहते हैं। आपके माँ बाप हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे पास 500 रुपए हैं, ये 500 रुपए से या तो मैं एक बड़ा सा अच्छा जमा करके एक बड़ा अच्छा मैं बड़ा टीवी खरीद लूं, या चलो 500 रुपए लेके मैं मेरी बेटी को एक महंगे स्कूल में पढ़ा दूं। तो ये ट्रेड ऑफ हम हर वक्त करते हैं। गवर्नमेंट जो है एक बड़ा जबरदस्त ट्रेड ऑफ जो हम एग्जाम्पल लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज कि each time the government has money, it can decide to do 2 things. One is it can produce food. The other is that it can produce guns. Right? पुरानी इकोनॉमिक्स में ये एग्जाम्पल दी जाती थी। आपके पास 1 लाख रुपए है गवर्नमेंट के पास, या तो 4 बंदूक खरीदें आप, या आप 4 थैले गेहूं खरीदें। अगर आप 4 बंदूक खरीदते हैं तो आपके पास खाना नहीं होता,
अगर आप 2 बंदूक खरीदते हैं तो आधा खाना होता है। अगर आप सिर्फ खाने पे पैसे लगाते हैं तो बंदूकें नहीं होती। तो आप फिर करेंगे क्या? आपके पास चाइना है जो अटैक करने को तैयार है। What will you do? Will you spend equal money on guns and food, or will you only spend money on guns, or only spend money on food? That is the trade-off question that all countries ask. और उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर आपने 10 रुपए की चाय पी ली तो आपने 10 रुपए कम खर्च किए अपनी एक किताब खरीदने। आपके पास 2 चॉइसेस थे कि आप या तो 200 रुपए का एक मूवी देख लेते जाके, या आप उन 200 रुपए से जाके आप एक किताब खरीद लेते। अगर आपने मूवी देखी तो यू हैव लॉस्ट द बुक, अगर आपने किताब खरीदी तो यू हैव लॉस्ट द मूवी। विच वन विल यू प्रेफर? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बुनियादी उसूल होता है, वो ये कहता है कि हर आदमी रैशनल आदमी होता है। रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल मतलब का मतलब ये है कि अगर आपको आइसक्रीम खरीदना है और 4 दुकानों में आपको आइसक्रीम मिल रही है, एक चोकोबार आइसक्रीम, पहली दुकान में 10 रुपए की, दूसरे में 15, तीसरे में 20, चौथे में 25, तो आप कौन सी आइसक्रीम खरीदें? सेम आइसक्रीम, उसी साइज की है, वही चॉकलेट है, वही मजा है उसमें। एक पहली दुकान बिल्कुल ही टीन का छप्पर है, और चौथी दुकान जो है बहुत बड़ी एयर कंडीशन दुकान। आप कौन सी आइसक्रीम खरीदेंगे? इकोनॉमिक्स का बुनियादी उसूल ये है कि अगर लोगों के पास चॉइस हो तो वो सबसे सस्ती जगह से खरीदें। अगर आपको शर्ट खरीदना है, आपको एक शर्ट गली के कोने पे मिल रहा है 100 रुपए का, और एक शर्ट बड़े मॉल में 600 रुपए का, तो आप कौन सा शर्ट खरीदें? ठीक है, तो हम ये बेसिक बिलीफ रखते हैं इकोनॉमिक्स में कि अगर 2 चीजें मिल रही हो और दोनों के प्राइस अलग हो तो एवरीबडी विल चूज द आइटम जिसकी प्राइस कम। नाउ दिस डजंट हैपन ऑल द टाइम, Less बट price. दैट इज लेस प्राइस, दैट इज कॉल्ड रैशनल चॉइस। दैट इज व्हाई ये क्यों हम बात कर रहे हैं इसकी, कि जब आप लोग बड़े एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएंगे, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप जब कोई बहुत बड़ी चीज बेच रहे हैं ना, कोई बड़ी कार बेच रहे हैं, तो आपकी कार तभी खरीदेंगे लोग जब आपकी कार के पास सब लोगों के जैसे फीचर हो, लेकिन वो सबसे सस्ती हो उस सेगमेंट में। अगर आप ब्रेड बेच रहे हो तो आपकी ब्रेड उतनी अच्छी हो जितनी मॉडर्न और ब्रिटानिया और व्हाटएवर गोल्डन हार्वेस्ट, लेकिन उससे 1 रुपया सस्ती हो। ये बाकी टर्म्स उसी से निकल के आते हैं। मैं एक टर्म ऐड कर दूं जिसका नाम है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है कि आप अगर कोई चीज करें तो उसमें आपको फायदा क्या है। अगर आप किसी से कोई काम कराना चाह रहे हैं तो वो क्यों करेगा आपके लिए काम? अगर हम अब हमारे पास क्या मसला है, वी ऑल वांट एवरीबडी टू वेयर अ मास्क। व्हाई आर पीपल नॉट वेयरिंग मास्क? हैव यू सीन मोस्ट पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क। पढ़े लिखे लोग जिनको मालूम है कि ये कोविड से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, वो क्यों नहीं पहने? अगर आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो या तो देयर शुड बी अ प्राइज एट द एंड ऑफ द डे, या तो आप मुझे पैसे दें उस काम पर, या ये कहें कि अगर नहीं करोगे तो बहुत पिटाई होगी। तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। व्हाई डज एवरीबडी वेयर अ हेलमेट व्हेन दे ड्राइव अ मोटरसाइकिल? सब पहनते हैं आजकल, क्यों? क्योंकि अगर आप पहने नहीं तो फौरन पुलिस वाला पकड़ के आपको 1000 रुपए का चालान कर देगा। So therefore, any good economic system, when it wants people to do things in a particular manner, it should ensure that
there is a strong incentive for people to do that, or there is a strong disincentive. हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? हम में से कुछ लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं? सुबह सुबह उठ के कसरत करते हैं. Why do we do that? Because we have understood that if you exercise every day for half an hour, 45 minutes, 1 hour, then your health improves tremendously. Right? So therefore, in any economy, there has to be a system of clear incentives. It is when you incentivize good behavior that you can build good economic policy. फिर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है एक्सटर्नैलिटी. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. एक्सटर्नैलिटी का क्या मतलब? एक्सटर्नैलिटी ये होती है कि अगर आप अपने कमरे में, अपने घर में आप जोर जोर से म्यूजिक बजाएं, बड़ी अच्छी म्यूजिक है, बहुत खूबसूरत गा रहे हैं कोई, लेकिन आप जोर जोर से बजा रहे हैं, पीछे बोलिए ना. तो आप क्यों कर रहे? आपके उस काम से what is the neighborhood suffering? Your neighbor might not like whoever you are listening to. You must be listening to some big Justin Bieber or Babul Supriyo या जिसको भी आप पसंद करते हो. आपके एक एक्शन की वजह से आपका नेबर परेशान है, उसको एक्सटर्नैलिटी कहते हैं. आप अपने घर में कचरा जला रहे हैं, आपका कचरा तो साफ हो रहा है, लेकिन जो पड़ोसी है उस पड़ोसी के आंख में धुआं जा रहा है. इसको एक्सटर्नैलिटी कहते हैं. जब हवाई जहाज आता है एयरपोर्ट पे, तो जो लोग उस हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग at a fast speed and reaching from one place to another. But those who are living around the airport, उनकी नींद खराब हो रही. That is what is known as an externality. इसको कैसे टैकल करें? क्या हम ऐसा कानून लाएं कि आपको अगर जोर से म्यूजिक बजाना है तो आप नेबर्स के सारे घरों में जाके उनको पैसे दें कि ये लीजिए भाई, आपको 15 रुपए की तकलीफ हो रही है, मैं 15 रुपए दे रहा हूं. या हम कानून बना दें कि नहीं, यू विल नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, विच इज अ बेटर मेथड. दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम देखते हैं वो है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या चीज है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. इन्फ्लेशन का मतलब ये कि दाम बढ़ने लगते हैं. जब दाम बढ़ने लगते हैं उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. आप 1 साल पहले पेट्रोल लेने गए, 75 रुपए का था, आज 95 रुपए का है, कल 100 रुपए का होगा. दैट इज व्हाट इज नोन एज इन्फ्लेशन. हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन होता क्यों है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसको कम कैसे करें. दैट इज वन मेजर रीजन फॉर स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक जो आखिरी चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमको ये मालूम होता है कि एक मुल्क की इनकम कितनी है. सी, व्हेन आई आस्क Zainab, how much are you earning? Then that is the answer I get is that I find out about Zainab's income. Zainab कह रही कि मुझे 50,000 रुपए मिलते हैं. लेकिन अगर मुझे मालूम करना है कि इंडिया की इनकम क्या है, अमेरिका की इनकम क्या है, तो कैसे मालूम करें? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा पहलू ये होता है कि ये हमको अलाउ करता है कि हम मालूम करें कि एक मुल्क में कितनी इनकम होती है. अब मुल्क की इनकम
कैलकुलेट करने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स. वन मेथड इज टू फाइंड आउट कि लोग कितने चीजें खरीद रहे हैं. अगर हमको पता चल जाए कि सारे लोग मिलके, दैट इज राइट अली, हाउ डू वी कैलकुलेट जीडीपी? ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये कि हम इस मुल्क में जितनी भी चीजें बन रही साल, उसका जमा करें. That we add everything that has been produced in this country for the last 12 months. अगर हमारे मुल्क में सिर्फ ये चाय के कप बन रहे हैं, सिर्फ चाय के कप, तो हम ऐड करें that in this year India has produced 100 teacups. If India has produced 100 cups and if the price of each cup is 20 rupees, then India's total production is 2000 rupees. That is India's GDP. बहुत सिंपल है. अगर इंडिया में सिर्फ आम पैदा हो रहे हैं और 1000 किलो आम पैदा हो रहा है और हर आम 2 रुपए किलो बिकता है, तो इंडिया का जीडीपी 2000 रुपए. अब ऐसा तो नहीं है कि a country only produces one thing. A country produces mangoes also, teacups also, sofa also, air conditioner also, table also. तो जब आप ये सब ऐड कर लें, when you add all the consumption goods and the final goods, that total becomes your gross domestic production. अब दुनिया का सबसे अमीर मुल्क कौन सा है? आप में से किसी को अगर अंदाजा हो कि दुनिया का सबसे अमीर मुल्क, with a very good Sayyada, whether value added method, income method, expenditure method, if you use any of these methods, which is the who is this? Abdul Rahim. Qatar is not the richest economy. Qatar, एक औसत खतरी is the richest person in the world. You are right. That per capita income अगर आप देखें तो खतर की per capita income 1 लाख से ज्यादा है, पर $1 लाख से ज्यादा per year. Right? So very important that who was that? मोहम्मद अब्दुल रहीम. मोहम्मद अब्दुल रहीम, आपने जवाब सही दिया लेकिन दूसरे सवाल के लिए, right? Not for this question. If I had asked which is the country that has the highest per capita income, it is Qatar. Per capita income का मतलब कि हर आदमी की इनकम, एवरेज इनकम कहाँ सबसे ज्यादा है? That is Qatar, followed by Switzerland and so on, where every person in that country on an average earns more than $1 lakh a year. हमारी कितनी है? खतर की 1 लाख है, अमेरिका की अबाउट 55,000 है, इंडिया की 2,000. दैट इज व्हाई वी आर अमंग द पुअरेस्ट पर कैपिटा इनकम्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. लेकिन अगर आप हमारा टोटल करें ना, हमारी टोटल इनकम वो $2.7 ट्रिलियन है, 150 लाख करोड़ रुपए. और हम अगर जीडीपी देखें तो हमारा जीडीपी नंबर 6 पे है दुनिया में. वी आर द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. बट इफ यू सी पर कैपिटा इनकम तो हम सीधे 140 पे आ जाते, राइट? सो सैयद सफदर जैदी, राइट, सफदर ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस की. यूएस में अगर आप सब चीजें ऐड करें, यूएस क्या प्रोड्यूस करता है? हर चीज प्रोड्यूस करता है यूएस. सबसे ज्यादा दुनिया में गन्स कौन प्रोड्यूस करता है? यूनाइटेड स्टेट्स. सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन बनाता है? यूनाइटेड स्टेट्स. सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? यूनाइटेड स्टेट्स. सबसे ज्यादा सेब कौन प्रोड्यूस करता है? यूनाइटेड स्टेट्स. सबसे ज्यादा गेहूं? यूनाइटेड स्टेट्स. सबसे बड़े बैंक? यूएसए. तो अगर आप वो सब चीजें ऐड करें तो आपको एक मुल्क में पता चलेगा कि $20 ट्रिलियन
की पैदावार होती है हर साल. So US is number 1. Number 2, किसने कहा? अली ने कहा चाइना. चाइना इज नंबर 2, राइट? तो यस, सफदर ने फिर कहा चाइना. सो द यूएस इज $20 ट्रिलियन, चाइना इज अबाउट 10-12 ट्रिलियन डॉलर. तीसरे मुकाम पे कौन? तीसरे मुकाम पे जापान, $5 ट्रिलियन. सो 20, 10, 5. चौथे मुकाम पे जर्मनी, $4 ट्रिलियन. पांचवें मुकाम पे यूके, अबाउट $3.5 ट्रिलियन. छठे मुकाम पे 2 कंट्रीज हैं जो नेक टू नेक है, और वो है इंडिया और फ्रांस. इंडिया और फ्रांस दोनों अबाउट $2.5-2.6 ट्रिलियन पे. इतने करीब है वो कि अगर इंडिया फ्रांस से 2 हवाई जहाज खरीद ले तो फ्रांस अमीर हो जाता है. ये जो राफेल खरीद रहे हैं, हमने दो राफेल के पैसे दिए, हमारे पास से $2 मिलियन कम हुए, उनके पास $2 मिलियन ज्यादा हो गए, वो छठे मुकाम पे पहुंचे. तो छठे मुकाम पे है हम व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल जीडीपी. टोटल पर कैपिटा, एज आई सेड, हम 140 पे. पर कैपिटा पे कुवैत, कतर, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, सिंगापुर, these are all the rich economies जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा. तो 100 साल पहले when we decided to see कि कौन सा मुल्क सबसे अमीर होगा, तब हमने ये इन्वेंट किया था, this whole principle of measuring GDP. तो एक तरीका ये है कि हम टोटल प्रोडक्शन मेजर करें. दूसरा तरीका ये है कि हम सबके पास जाके ये पूछें कि भाई आप महीने में कितना कमाते हैं, साल भर में कितना कमाते हैं, और उसको ऐड करें तो भी वही फिगर आएगा. लेकिन चूंकि हम हर एक से जाके पूछ नहीं सकते कि आप कितना कमाते हैं साल में, हमारे पास ज्यादातर अमीर लोग बताते ही नहीं कि वो कितना कमाते हैं साल में, तो इसीलिए वी आर नॉट एबल टू यूज द इनकम मेथड, वी ऑलवेज यूज द एक्सपेंडिचर, राइट? ये सब जब हो जाए और एक मुल्क को पता चल जाए कि उसके पास कितने पैसे हैं, तब वो मुल्क 2 चीजें डिसाइड करता है. If you are the finance minister of the country and you know what the total production is, then you decide कि इसमें से कितने पैसे मुझे चाहिए. How much of the total money that people earn should come to the government. गवर्नमेंट को क्यों चाहिए पैसे? उसको हम टैक्स कहते हैं. गवर्नमेंट को हम क्यों टैक्स देते? Why should a government collect tax from us? And how much should it collect? That is the big question that we ask in macroeconomics. और किससे कलेक्ट करे ये पैसे? क्यों करे? जैसे अली कह रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के लिए. हम क्यों दें भाई पैसे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर करने के लिए? जब पुराने राजा महाराजा होते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे, तो लोग यही पूछते थे कि भाई हम क्यों दें आपको पैसे? आपको अगर शान शौकत से रहना है तो हमारे पैसे से क्यों? तब वो राजा कहता कि देखो भाई, तुम मुझे पैसे दो, मैं ना ये जो चाइना से जो रोज आके तुमको पीट के चला जाता है, मैं उसको रोकूंगा, मेरी आर्मी उसको रोकेगी, इसीलिए पैसे दीजिए मुझे. तो शुरू में गवर्नमेंट को हम पैसे सिर्फ इसलिए देते थे, हम सब खुशी से पैसे टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते थे, क्योंकि द गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड कि हम फॉरेन एग्रेशन को रोकेंगे, हम फॉरेन आर्मीज को रोकेंगे, उसके लिए हमें पैसे चाहिए. बस एक ही काम करता था राजा, वो आपको पिटाई से बचाता था. सो इट वाज प्रोटेक्शन मनी. वो जैसा वो गली का गुंडा नहीं करता, वो क्यों लेता है पैसे? वो हफ्ता क्यों लेता है? वो बोलता है देखो मुझे हफ्ता दो, ताकि वो जो इंस्पेक्टर आता है, पुलिस वाला आके मारता है, मैं रोकूंगा उसको. राइट? गवर्नमेंट भी यही करती. इट इज द सेम प्रिंसिपल. बहुत बाद में गवर्नमेंट ने ये कहा कि अच्छा, हमको पैसे इसलिए भी दो कि हम आपके लिए कुआं खोद देंगे, हम आपके लिए एक अस्पताल बना देंगे, हम आपके लिए पानी दे देंगे. सो वेलफेयर केम वेरी लेट. Today, the government collects tax, one, to protect us from China, from Chinese soldiers, but also to help us
get drinking water, healthcare, education, vaccines, and so on. So therefore, the reason we study macroeconomics is कि जब हमें पता चले कि हमारे पास कितने पैसे हैं टोटली, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें से 10% गवर्नमेंट को आना चाहिए, 5% आना चाहिए, 50% आना चाहिए। अब ये मैं आपको एक और सवाल करके छोड़ता हूँ कि इंडिया में कितना टैक्स देते हैं। अगर आप बड़े आदमी हैं, अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं साल में, तो आप 30% टैक्स, 10 से कम कमा रहे हैं तो आप 20%, अगर आप बड़ी कंपनी है तो आप 25% टैक्स देते हैं। तो इंडिविजुअल टैक्स अलग है, कंपनी का टैक्स अलग है। अब इज दिस हाई, इज दिस लो? अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो आप अबाउट 40% टैक्स, अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं तो आप 42% टैक्स, अगर आप दुबई सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो आप 0% टैक्स, अगर आप स्वीडन और नॉर्वे और फिनलैंड में रहते हैं तो आप 60% टैक्स देते हैं। अब कौन सही है कौन गलत, कितना सही है कितना गलत, किससे लेना चाहिए टैक्स, क्या हर आदमी टैक्स दे? ये एक बड़ा सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैं जवाब नहीं दे रहा हूं कितना, मैं ये कह रहा हूं कि दैट इज द एसेंस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द फाइनल थिंग आफ्टर यू हैव डिसाइडेड ऑल दिस इज कि गवर्नमेंट को ये सोचना होता है कि इस साल हमको कितने पैसे छापने चाहिए। यू नो, देयर इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप अगली बार एक करेंसी नोट देखें तो उस करेंसी नोट को जरूर पढ़ें। वालेकुम सलाम। आप जब करेंसी नोट देखें अगली बार, कोई भी नोट देखिए, उसको जरूर पढ़िएगा। हम कभी पढ़ते नहीं उसको पढ़िए कि उसमें क्या लिखा होता है, और ये सोचिए कि ऐसे कितने नोट छापती है गवर्नमेंट। 100 रुपए के कितने, 10 रुपए के कितने, 2000 के कितने, कुल मिला के गवर्नमेंट को कितने पैसे छापने चाहिए। अगर हमारा टोटल प्रोडक्शन 150 लाख करोड़ रुपए है साल भर का, तो क्या हमको 150 लाख करोड़ रुपए छापने चाहिए? हम छापते हैं अबाउट 15 लाख करोड़। क्यों छापते? 10%। कितने छापते, कब छापते? ये एक बड़ा सवाल मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। ये कौन करता है, कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3 चीजें करता है। एक, नोट छापता है। दूसरी ये कहता है कि इस साल या अगले 3 महीने तक आवर इंटरेस्ट रेट विल बी 6%। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टीचेस यू इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, 4%, 6%, 10%। और तीसरी चीज में रिजर्व बैंक ये करता है कि वो ये फॉलो करता है कि डॉलर की कीमत कितनी होगी। आप में से कुछ लोग बाहर काम करते हैं, आप में से कुछ लोगों के वालिदैन बाहर काम करते हैं, वो आपको पैसे भेजते हैं। $1 पहले भेजा करते थे तो आपको 30 रुपए मिलते थे, फिर 40 हुए, फिर 50 हुए, अब आपको 75 रुपए मिलते हैं। इज दैट गुड फॉर द कंट्री और बैड फॉर? शुड द डॉलर रेट बी 65 रुपीज और शुड इट बी 95? अस्सलाम वालेकुम। That is the final question that macroeconomics asks, and that is what we learn. What should be the real exchange rate? Should the exchange rate be high? Should it be low? और ये बदलता क्यों है रोज? तो ये सारे सवाल हैं which you learn to ask and answer in macroeconomics, and you can understand कि आप कुछ भी करें, आप सर्विस सेक्टर में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, आप व्यापारी हो, आप नौकरी करते हो, ये सारे सवाल आर इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑन अ डेली बेसिस। आप अगर सोना खरीदते हैं हर थोड़े दिन को, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोने का दाम क्यों बढ़ रहा है। अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो शेयर मार्केट क्यों इतना आगे है? जब इतना बुरा हाल है इंडिया का, तो शेयर मार्केट क्यों 50,000 पे पहुंचा हुआ है, सेंसेक्स? ठीक है, मैं यहाँ पे आई वॉन्ट टू फिनिश माई कॉन्वर्सेशन। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो that there are these questions that we ask every day. There are these questions that we face every day. And
and we read about them in the newspaper every day. अभी हमारी finance minister ने कहा कि हम 12 लाख करोड़ रुपए लोन लेंगे इस साल, 12 लाख करोड़ रुपए। उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? क्यों ले रहे हैं हम लोन? इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? ये फिस्कल डेफिसिट, ये डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट डेफिसिट में खसारे में क्यों है? कितने खसारे में है? ये सारे सवाल आर क्वेश्चंस दैट वी आस्क इन मैक्रो। दैट इज व्हाई देयर आर सम थिंग्स दैट वी शुड ऑल नो। आई होप जब आप कल अखबार पढ़ें तो वो जो इकोनॉमिक्स वाला पेज होता है ना, जो आप बिल्कुल जल्दी से पलटा देते हैं कि चलो छोड़ो ये नहीं पढ़ना है, मुझे उम्मीद है कि आप उस पेज पे 2 मिनट रुक के हेडलाइन कम से कम पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thanks a lot. Before I open the forum to other participants, I just have a very small and simple question. आमिर साहब, गवर्नमेंट चाहती है कि हम अमीर हो जाएं ताकि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले। कॉर्पोरेट बिजनेसमैन वांटेड अस टू बिकम रिच ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा माल बिके। उसके बावजूद हम 70 साल से 85% पॉवर्टी लाइन पे क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है शौकत भाई। अगर आप देखें तो अगर हमको अपने आप को खुश करना है तो वी शुड से कि हम जो है ना, हम 97% पुअर थे 70 साल में। अब हम 97 से 85 तक, तो बहुत बड़ा इम्प्रूव। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है, जो $100 हुआ करती थी, वो अब $2000। तो हम सब बेहतर हो गए। एक तरीका वो है। लेकिन जो अहम सवाल आपने पूछा कि why is a majority of this 85% is poor by international standards. By Indian standards हमारी about 30% आबादी गरीब है। तो अगर आप देखें तो 70% लोग ठीक ठाक हैं हमारे अपने अंदाजे से, क्योंकि अपने पास अगर किसी को 10-12 हजार रुपए मिल रहे हैं तो वो ठीक ठाक घर है, अगर तो वो दुनिया भर में गरीब समझा जाता है, लेकिन हमारे पास हमारी जो तनख्वाहें हैं उसमें वो ठीक ठाक समझा जाता है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास अबाउट 30% आर पुअर। नाउ व्हाई इज सच अ लार्ज फिगर? दुनिया में सबसे ज्यादा कलेक्शन ऑफ पुअर पीपल लिव इन इंडिया। इतने ज्यादा गरीब लोग दुनिया में कहीं नहीं है, नाइजीरिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये क्यों है? ये सिर्फ ये इस वजह से कि हमने इतने दिनों में हमारी जो इकोनॉमी रही उसने एक बड़े तबके को कंप्लीटली नजरअंदाज किया। वी हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट रूरल लैंडलेस पीपल। ये जो 30% बहुत गरीब है ना, ये कौन है? ये ज्यादातर गरीब गांव में रहते हैं, और ये ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई एसेट नहीं है। उनके पास ना कोई जमीन है, ना घर है, ना बैल है, ना भैंस है, ना साइकिल। और मुल्कों में क्या हुआ कि जो बहुत गरीब था उसको यूजुअली एक चीज दी गई, इनमें से कोई एक चीज दी गई। बांग्लादेश में अगर आप देखें तो इनमें जो बहुत गरीब था उनको थोड़ी सी जमीन दी गई। केन्या या टेंजानिया में आप देखिए कि अगर कोई बहुत गरीब था तो उसको 2 जानवर दिए गए। यूनाइटेड स्टेट्स में जो गरीब था उसको थोड़ी जमीन दी गई। अगर आप किसी को गरीबी से निकालना चाह रहे हैं तो बेस्ट वे इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन एक आसान तरीका है, लेकिन जो मुश्किल है और अच्छा तरीका है वो ये है कि गरीब को कोई एक एसेट दिया जाए। वो हमने नहीं किया। हमने शुरू किया था, when you were preparing for your civil service, I'm sure you studied about land reform. हमने शुरू किया था कि हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, हम गरीब अमीरों से जमीन लेके गरीबों में बांटेंगे, लेकिन हमारे पास हिम्मत नहीं थी वो करने की। हमारे अमीरों ने हमको वोट देना बंद कर दिया, हमने रोक दिया वो। राइट। सो हमको चाहिए कि हम जहाँ जैसे अब चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, उन्होंने अनाउंस किया कि हम सबको एक 2 बेडरूम का या 1 बेडरूम का घर दें। दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वे आउट ऑफ पॉवर्टी। वो जो कहते हैं ना कि आप फिशिंग रॉड खरीद के दीजिए, तो कोई एक ऐसा एसेट हो जिससे कोई कमा सके। वरना हम क्या करते हैं, हम रमजान में खाना खिला देते हैं, हम इफ्तार करा देते हैं। हम सब भी वही करते हैं। हम सब क्या करते हैं, जब हम बहुत फराख दिल होते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम बहुत सवाब कमाएं, तो हम जाके 2-4 लोगों को मिलकर बेहतरीन बिरयानी खिलाएं। What has that solved? That has solved the next meal, but that has not solved the poverty. Yeah, thanks a lot.
We have 10 minutes. Maybe I can ask the participants if they can unmute themselves and have a question, or maybe Amir Sab, you have the access to the chat. Yeah. So let me see that. That very nice. I'm very happy with the manner in which you have all participated in the chat discussion. So if I look at it, so Mehveen कह रहे हैं कि why are people poor becoming more poor? That is a very good question, Mehveen Fatima. हमारे पास पिछले 3-4 साल में ये बहुत अजीब बात दिखाई दी कि the poor have become even poorer. कोविड का एक साल ऐसा रहा कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब थे और अब ज्यादा गरीब हो गए. See, in the history of a country, people become less poor as the country develops. हमारे पास भी कई सालों से हमारे लोग कम गरीब हो रहे थे. पिछले साल बहुत सारे लोग वापस चले गए गरीब. वो क्यों हुआ? क्योंकि 10 करोड़ लोग गरीब हो गए. वो क्यों हुआ? क्योंकि 15 करोड़ नौकरियां चली गई. 35 million, 3.5 crore people जो मिडिल क्लास हुआ करते थे 2016 में, वो अब गरीब में शामिल हो गए. And the big reason is unemployment. So what has happened, और ये कोविड की वजह से ही नहीं, पिछले 3-4 साल से हमारी गवर्नमेंट की 2-3 पॉलिसीज ऐसी आई जिसकी वजह से बहुत नौकरियां चली गई. पहली पॉलिसी थी डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन में जैसे रातों रात हमने पैसे गायब कर दिए, तो लॉट ऑफ कंपनीज हैड टू क्लोज डाउन. So that is one major reason why we find that people are that poor are becoming poorer. And as Shahnaz is saying, the rich are becoming richer. ये बड़ी अजीब बात है. ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. ये मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि जब कभी इस किस्म की इमरजेंसी आती है कंट्रीज में, जब ऐसा डिजास्टर स्ट्राइक करता है जैसे कोविड, कोई जंग होती या फसाद होता है या फ्लड आता है, so you know what happens? A lot of people become poor, but the rich people, they become richer. ये हमने हर बार देखा है. जब वर्ल्ड वॉर हुई तो बहुत लोग गरीब हुए, लेकिन कुछ लोग बहुत अमीर हुए. स्टॉक मार्केट हमेशा बुरे जमाने में बहुत आगे बढ़ता है. तो ये हुआ. हमारे अडानी साहब है, गौतम अडानी ने पिछले साल he earned more money than Bill Gates, जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी. गौतम अडानी ने he purchased a dozen airports. वो मैं 12 शर्ट नहीं खरीद सका पिछले 20 साल में. उन्होंने 12 एयरपोर्ट खरीदे पिछले साल. So that is the problem that has happened, that our rich have become very. हमारे पास जो inequality है वो बहुत बढ़ गई. और वो एक अहम सवाल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि एक तरफ गरीबी, एक तरफ इनइक्वालिटी. हाउ डू यू मैनेज दैट? अली हैदर कह रहे हैं कि निजाम ने did land reform. That's a very interesting thing. If you see, most of the kings who are recognized as great kings, Quli Qutub Shah, Akbar, you have some names जिनको आप तारीफ के साथ कहते हो. उस्मान अली खान. आप देखिए कि इन लोगों के जमाने में एक तो टैक्स रेट्स आर ऑलवेज लो, एंड सेकेंडली they ensure that a lot of poor people get some assets or get some work. आप लोग अगली बार जब चारमीनार जाए तो चारमीनार को जरा 2 मिनट ज्यादा देखिए मेरे लिए, और ये सोचिए कि ये क्या है. ये बिल्डिंग चारमीनार है क्या? Why is it there? Is it a mosque? No. Is it a school? No. Is it a tomb? No. Is it a museum? एक बिल्कुल 4 different minarets together, a completely useless building. Why was it constructed? और आपको पता चलेगा कि उस जमाने के रूलर ने ये देखा कि there is a severe drought in तेलंगाना. बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोगों के खेत जल गए. तो ही सेड कि मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं, उस बिल्डिंग से 20,000 लोगों को फायदा हो. दैट इज द पर्पस. आप ताजमहल चले जाइए, अगेन ब्यूटिफुल बिल्डिंग, राइट, एब्सोल्युटली लवली. One of the big reasons, if you see the time at which the Taj Mahal was built, one of the reasons was severe drought. So a lot of
kings around the world, they would do this. In macroeconomics, it is called Keynesian economics or welfare economics. जॉन मेनार्ड कीन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जब बहुत भूखमरी हो, बहुत परेशानी हो, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा खर्च करे जिससे बहुत से लोगों को मुलाजमत मिले, इवन इफ इट मींस कि चलो यहाँ आओ और ये खोदना शुरू करो यहाँ पे और उसके बाद उसको भर दो, लेकिन दैट प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट. सो दैट इज राइट. Is India moving towards a capitalist structure? Yes, that is right. And वो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में फर्क क्या है, वो एक अलग पहलू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. What can be done to bring poverty into national discussion? Very good question, अहमद. मुझसे अक्सर लोग दुनिया भर में ये पूछते हैं कि आपका मुल्क ऐसा अजीब मुल्क क्यों है भाई, आप क्या इतने लोग भूखे मरते हैं, इतने लोग भूखे मरते हैं, लेकिन वो खामोशी से अपनी भूखमरी सहते चले जाते. अगर हमारे मुल्क में ऐसा होता तो हम तो नोच डालते लोग. ये कैसे हो सकता है कि लोग बगैर खाने पानी के 25 दिन 30 दिन तक पैदल अपने घर के लिए निकल जाएं, एंड दे सी दिस टॉल हाउसेस जहां पे लोग अपने 10-10 करोड़ की गाड़ियों में खाना बर्बाद कर रहे हैं. हाउ डू दे टॉलरेट? आप देखिए कि जहां हमारे पास बहुत बड़े लोग हैं, आसपास में बहुत गरीबी है. मुकेश अंबानी के घर के आसपास सबसे बड़ा स्लम है दुनिया का. वो रोज ऊपर देख के क्या सोचते हो, वो क्यों नहीं जाके एक दिन हमला बोल देते? अगर मेरा बच्चा भूखा है और मैं एक बड़ी इमारत में देख रहा हूं कि लोग केक पेस्ट्री खाए जा रहे हैं, तो व्हाई डोंट आई गो देयर एंड अटैक इट? इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. इंडिया में ऐसा होता है, और सही वेनेजुएला में, कंबोडिया में, कोलंबिया में कई बार आपने देखा होगा कि फूड राइट्स होते हैं. अगर लोगों के पास खाना नहीं है, वो जाके लूट लेते हैं दुकान. हम नहीं करते हो. हम अपनी सरकार को दुआ देते हुए भूखे मर जाते हैं, या अपने भगवान, या क्योंकि हमारे पास ये बताया गया है कि आपकी अगर दुर्दशा है तो वो आपकी वजह से, वो हमारी वजह से नहीं है. और आप अगर इसको अच्छी तरह संभाल लें और आप सब्र कर लें, तो आप अगली जन्म में आपकी पैदाइश बहुत बड़े घर में होगी. अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आप चूहे बन के पैदा होंगे. तो ये हम चूंकि बड़े मजहबी लोग हैं, और हर सब मजहब में हमारे पास भी हम क्या कहते हैं, नहीं भाई सब्र करो, मायूस मत हो, अल्लाह मियाँ से शिकायत मत करो, वर्क हार्ड, you will get the result. We don't think that it is a right to get food, right? तो ये एक वजह हमारी ये है कि हम बड़े मजहबी लोग, हमारे सारे मजहब ये सिखाते हैं कि सब्र करो. तो why can't India start a system? शहनाज राशिद ने बहुत अच्छा सवाल किया. ये हम कई बार, मैं अभी कल ही लिख रहा था एक कॉलम में मैंने पिछले साल भी लिखा था, इस बार फिर लिखा कि ऐसे जब वाकयात आते हैं तो हमको चाहिए कि हम एक सिक्योरिटी सिस्टम इस्टेब्लिश करें हर आदमी को. My proposition, and some of us have been saying that for some time, some of us economists, we are saying that the government should send 6,000 rupees to every household every month. 6,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन 6,000 रुपए में 4-5 लोगों का खाना हो जाता है, भूखे नहीं मरते. तो अगर हम हर एक के घर में 6,000 रुपए भेज दें, हमारे पास 200 मिलियन हाउस होल्ड है, राइट? 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, 200 मिलियन घरों में रहती है. 200 मिलियन घरों में आप 6-6 हजार रुपए हर महीना पहुंचा दें, कोई ज्यादा 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, which is half of our defense budget, लेकिन हर आदमी के पास खाना हो जाएगा. So yes, we have to do that, लेकिन वो हमारे पास वो स्टैच्यू बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए नहीं होता. तो how Elon Musk has become the richest man, that is right. सैयद सफदर जैदी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये. हमेशा देखा हमने कि जो बहुत बड़ा आदमी होता है ना, वो और बड़ा हो जाता है इस जमाने में. How can we take advantage of interest rate? Very good question, Asma Bakhri, but very difficult answer.
क्योंकि ना अब इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन आप लोन लेके करेंगे क्या? देयर इज नो कंजम्पशन. When do you take a loan? When there is lots of consumption. That is why there is a liquidity problem in the country, or what is called as monetary transmission. Why is the government not taking measures to remove poverty? Because they are not interested. जितने गरीब लोग हैं उतना अच्छा है government के लिए. Is increase in population the reason? Bilqis Fatima, the answer is no. Population is not the reason for poverty rate in India. You know हम कब गरीब थे? हम बहुत गरीब 100 साल पहले थे, जब हमारी पॉपुलेशन 1/3 थी. अब we were very poor. Our fastest income growth is when our population grew the fastest. You know, लोगों के पास जब पॉपुलेशन नहीं होती ना, वो बहुत गरीब मुल्क होते हैं. दुनिया के जो सबसे गरीब मुल्क हैं, कॉन्गो, जायर, बुरुंडी, सीरिया लियोन, ये क्यों गरीब है? क्योंकि इनके पास लोग ही नहीं है. हमारी सबसे बड़ी नेमत हमारी पॉपुलेशन, not our biggest curse. Ali Haider, will inflation go up? Yes. अगर हम पैसे बांटे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम सबके पास 6-6 हजार रुपए आने लगेंगे, हम क्या करेंगे उन 6 हजार रुपए का? हम जाके चीजें खरीदेंगे. Isn't it? The demand will go up. What happens when demand goes up? As soon as demand goes up, the supply goes up. When supply goes up, इसका मतलब ये कि जो बड़े बड़े आप लोगों में से फैक्ट्री वाले हैं, ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो लोगों को हायर करेंगे. You will invest more money, and that is why supply will catch up with demand, and therefore inflation will come down, consumption will go up, savings will go up. That is what is known as an economic stimulus. और इस जमाने में वो economic stimulus बहुत जरूरी होता है. बुशरा फातिमा, मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने. मार्जिनल यूटिलिटी ये होती है कि अगले यूनिट से आपको क्या फायदा होता है. मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, आप सोच के अपने जहन में जवाब दीजिए. आप बहुत बहुत भूखी हैं, आपने 15 दिन से खाना नहीं खाया, राइट? अब 2 महीने से खाना नहीं खाया, राइट? खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इमेजिन करिए हो गया. मैं लाके आपको एक बर्गर देता हूं, आपके पास 5,000 रुपए है. मैं आके आपको बर्गर देता हूं और कहता हूं कि ये बर्गर जो है 1,000 रुपए का है. नाउ थिंक ऑफ योर कंडीशन. यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 months. यू आर फैमिश्ड. आप मुझे 1,000 रुपए दे देंगी बर्गर के लिए? शॉक्स, इजंट इट? यू आर सो हंग्री दैट यू विल ईट एनीथिंग. तो मैंने आपको एक बर्गर दे दिया, आपकी भूख मिटी? नहीं मिटी. मैंने फिर आपको दूसरा बर्गर दिया. अब आप दूसरे बर्गर के कितने पैसे देंगे? 1,000 रुपए. या आप कहेंगे अच्छा भैया दूसरा बर्गर मुझे 800 रुपए में दे दो, तीसरा बर्गर आप 500 रुपए में खरीदेंगे, चौथे बर्गर में आपकी भूख खत्म होने लगी, आप उसके 100 रुपए दें. 5वां बर्गर जब दूंगा तो आप 20 रुपए दें. छठे बर्गर पे आप कहेंगे कि अब तुम मुझे पैसे दो खाने के. राइट? दैट इज व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. कि हर एडिशनल आइटम की कीमत पिछले आइटम से कम होती, क्योंकि आपको उससे जो फायदा हो रहा है वो कम हो रहा है. आप जितनी चीजें आपके पास एक शर्ट है तो वो बहुत कीमती होता है आपके लिए, लेकिन आपके पास 50 शर्ट हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कहां पे. आप जब दुकान में जाती हैं और मैं कहता हूं कि मैडम आप एक शर्ट लीजिए, एक फ्री है. क्या कह रहा हूं मैं आपसे? एक शर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दूसरे की 0 है. आप वो ऑफर देखती होंगी ना, बाई 4 get 1 फ्री. उसका मतलब ये होता है कि 4 तक तो आप देने को तैयार हैं पैसे, 5वां जब ही लेंगे आप जब मैं 0 रखूं उसकी. दैट इज व्हाट इज मार्जिनल. This is a very good question, Saleha. What is the biggest cause of poverty in India today? Very good question. It is not laziness, Ali. Ali का ये जवाब बड़ा मिस्टीवियस और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है कि क्या गरीब आदमी काहिल होता है, क्या गरीब आदमी लेजी होता है. आपने कभी कोई गरीब आदमी को लेजी देखा? The only people who can afford to be lazy are the rich. I am rich. अगर मैं 3 दिन नौकरी पे नहीं जाऊं, it doesn't matter. I can afford that.
जो गरीब रिक्शा चलाता है ना, उसको रोज जाना पड़ता है, वो अगर कल नहीं गया तो कल उसके बच्चे भूखे मरते। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। इनफैक्ट द लास्ट नोबेल प्राइज विनर, उसने इसी पे काम किया था, और उसने ये कहा था कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द लेजी रिच इज अ myth, is pure mythology. Poor are the most hardworking people in the world. It is the rich who are lazy. लेकिन to back to the question कि सबसे बड़ा कॉज क्या है पॉवर्टी का इंडिया में? हर मुल्क में अलग अलग कॉज है। इंडिया का सबसे बड़ा कॉज, और आप लोगों को, कुछ लोगों को हैरत होगी, इंडिया में सबसे बड़ी वजह गरीबी की। कई वजूहत हैं, नौकरी नहीं, एसेट नहीं, खाना नहीं, एजुकेशन नहीं, घर नहीं, ये सब वजूहत है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम वजह है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं कि मोस्ट कोरिलेटेड रीजन, द मोस्ट हाईएस्ट कोरिलेटेड वेरिएबल दैट कॉजेस क्रॉनिक पॉवर्टी इन इंडिया इज हेल्थ केयर। एक बीमारी, मैं अपने हाउस होल्ड का हेड हूं, मेरे 4-5 बच्चे हैं, बेगम है, माँ बाप हैं, और मैं बीमार हो गया। In 20% of the cases in India, in 60 million cases every year in India, one episode of illness has caused chronic poverty. Chronic poverty का क्या मतलब होता है? Chronic poverty का मतलब वो poverty जो कभी नहीं जाएगी, वो ताहयात रहती है। So the biggest cause for chronic poverty in India is one episode of illness. That is why we say कि जब गवर्नमेंट इग्नोर करती है हेल्थ केयर, जब नहीं बनाती सरकारी दवाखाने, इट इज क्रिमिनल, इट इज पुशिंग पीपल इनटू पॉवर्टी, इट इज किलिंग पीपल एंड किलिंग द हेड ऑफ द हाउस। सारा खानदान फिर उससे नहीं संभल पाता। दैट इज व्हाई व्हेन पीपल लाइक हेल्पिंग हैंड्स एक्सेट्रा गो आउट एंड हेल्प पीपल हु आर अनवेल, हेल्प पीपल हु आर सिक। आप में से जो लोग अपने ज़कात के पैसे या अपने चैरिटी के पैसे या अपने सदक़े के पैसे उन लोगों को देते हैं जो इलाज ढूंढते फिरते हैं, वो शायद सबसे बड़ा काम आप कर रहे हैं टू स्टॉप पॉवर्टी। If you take the data, then giving money for healthcare is a far more important thing than giving money for education or for iftar or for शादी। ठीक है, तो I think that these are questions that I have answered. What is, from the point of view of an economist, where do you see India in the next 5 years? I am very disappointed, Shahnaz. I think that India is making a big mess of itself. हम जो है ना गलत प्रायोरिटीज पे चले गए। हमको चाहिए था कि इस दौरान we focused on technology, on innovation, on education, on making the best technological progress, on making the best roads and airports and so on. और हम जो है हम टेम्पल और स्टैच्यू बना रहे हैं। So हमारे institutions कमजोर हो गए हैं। So I think that we are making a big mistake. I thank you for asking all these very bright, very smart questions. Of course, I have just touched upon some. I have not answered all the questions. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप भी सोचें। अगर हम लोगों के पास जवाब होते तो हमारी इतनी बुरी हालत नहीं होती। A lot of the blame should come to economists like us. What were we doing for the last so many years? Shaukat bhai, that's the answer to your question. One of the big defaulters were the economists. उन्होंने सोचा ही नहीं गरीबी के बारे में। So thank you very much. I think we have. Thanks a lot. Thanks a lot to everyone. Good number of people. Ji, please. Ahmed here. Very interesting, Amir bhai. Thank you very much. अरे वाह अहमद भाई, biggest disaster we are doing and in the making we are seeing is जो लोग चपरासियों के काबिल नहीं समझते, हम जो है उनको जो है अपने पॉलिटिकल और मास्टर क्लास बना के जो अगर हमारे कंपनीज में हमारे घर में जो है कोई नौकरी के लिए अप्लाई करे, इनको कभी जो है नौकरी ना दे, मगर उनको जो है पॉलिटिकल वोट देके जो है we have made them our masters. Correct. That's the most unfortunate disaster we are seeing in front of our eyes.
So true. true, Ahmed bhai, so true. अच्छा, I didn't know you were also listening. मैं थोड़ा मोहतात रहता. शौकत Thanks भाई a lot, भी है, everyone. शौकत हयात साहब भी है. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम भाई. Thank you so much. Gee, thanks a lot to everyone, all the participants. Amir sir, once again, thanks to you. Inshallah, we'll meet once again next month. God bless you all. Thank you very much. Take care. अच्छे Have a- अच्छे दिन आ गए अब